स्टेट ऑफ मैटर हम लोगों ने बॉयल्स लॉ स्टार्ट कर लिया था, और बॉयल्स लॉ में वी नो इट इज P1 V1 इक्वल टू P2 V2 अप्रोक्सीमेटली। उसके बेस पे एक दो हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया था, जिसमें एक क्वेश्चन शायद हम लोगों ने किया था इरेगुलरली शेप्ड वेसल था, जिसका हम लोग को वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। यस, और शायद एक और क्वेश्चन किया था बस वो ट्यूब को मरकरी से कितना ऊपर एक्सटेंड करना पड़ेगा। कुछ ऐसे दो क्वेश्चंस किए हैं ना लोगों ने बस। यस सर। यस, सो फर्स्ट विल कंटिन्यू विद बॉयल्स लॉ ओनली, बॉयल्स लॉ के क्वेश्चंस। फिर हम लोग कुछ चार्ल्स लॉ आज पढ़ेंगे, कुछ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, एंड आइडियल गैस इक्वेशन के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हम लोग को, है ना। सो इज इट क्लियर कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग को आज? यस ठीक है, सो first we'll do few questions based on the Boyle's law only, it is just for the revision, and Boyle's law के बाद कुछ Charles law हम लोग को पढ़ना है, then eventually ideal gas equations हम लोग पढ़ेंगे। So here let's say the next question related to Boyle's law, third question. So the question is, let's say at constant temperature, if pressure of gas is increased by 25%, then find out percentage decrease in volume. At constant temperature, if pressure of gas is increased by 25%, then find out percentage decrease in volume. Yes, तुम लोग के पास A ऑप्शन है let's say 25%, B ऑप्शन है let's say 12.5%, C ऑप्शन है 20%, and D ऑप्शन है 33.3%. At constant temperature, if a pressure of gas is increased by 25%, then you have to find out percentage decrease in its volume. Obviously, you have to simply apply P1 V1 equal to P2 V2. Yes, अमन तुम्हारा आंसर सही है। यस शैनन, काफी बच्चों का आंसर सही आ रहा है अभी। यस जयवल, सो यू नो लेट्स से at constant temperature of given amount of gas, P1 V1 should be equal to P2 V2. Yes विनीत, बस सब बच्चों का आंसर थोड़ा सही आ रहा है, तो क्वेश्चन शायद आसान भी था। Here this P2 is nothing but P1 plus let's say 25% of P1 and comes out to be 5/4 times of P1, है ना। जो P2 का वैल्यू है it is 5/4 times of P1, जो प्रेशर है। Further you can say it is P1 V1 is nothing but 5/4 times of P1 and V2. From here V2 is 4/5 times of V1. So you can say the percentage change
in volume should be equal to V2 minus V1 divided by V1 into 100, and it comes out to be minus 20%. So minus 20% means obviously it will be decrease in 20%. तो ये बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ भी रहा था, और ये इसमें कोई परेशानी नहीं है सर क्वेश्चन में। यस बच्चे, क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में? मेरे पास आंसर कुछ ऐसा 20% आ जाएगा ना, 20% डिक्रीज। किसी बच्चे कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछो उसमें, है ना? सर क्लियर है। क्लियर है? Yes, I think we should move to the next question here. ये लिख भी लिया है तुम लोगों ने कि नहीं लिखा है? Yes यस sir. सर, लिखा है। Very good. So next question is question number 4. Let's say based on Boyle's law. So it is if let's say if a glass tube with अश्विनी विश्वास का लेक्चर फोन नहीं उठा रहा है, फाउंडेशन आरटीपीएस में 4 बजे से था, 4:30 हो गया। करते रहो, फोन करते रहो, देखो फोन if a glass tube with uniform cross-sectional area closed from one end. If a glass tube with uniform cross-sectional area closed from one end lies horizontally. Lies horizontally as, let's say as given in diagram. Suppose यहाँ कुछ इस टाइप का डायग्राम गिवन है इस ट्यूब का, which has uniform cross section and lies horizontally. It has, let's say, mercury. It has a separator of mercury here. Suppose यहाँ ये mercury है, and inside this tube some air is trapped here. Here this distance is nothing but, let's say, 100 centimeter air है, इसको मैं L नोट दे देता हूँ length. More important thing is the atmospheric pressure is given as 76 centimeter of mercury, जो obviously इधर से apply होने वाला है. So you have to find out length of air column in following orientation of tube. You have to find out the length of air column in following orientation of tube. Let's say first orientation is
सपोज फर्स्ट ओरिएंटेशन ऑफ ट्यूब इज, यहां ये मरकरी है एंड लेट्स से the length of this mercury column is nothing but, let's say, L1. So you have to find out this length L1. अगर ये सब कुछ जो भी हम लोगों ने किया है, it is at constant temperature. ये A पार्ट है, मैं जल्दी से यहाँ B पार्ट भी लिख देता हूँ, फिर दोनों पार्ट ट्राई करेंगे हम लोग और फिर C पार्ट भी देखेंगे. In another case, let's say if tube is held like this, और यहां अभी air trapped है with length equal to, let's say, L2 है. जो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या है? कोई एक ग्लास ट्यूब है with uniform cross sectional area closed from one end, lies horizontally as shown in diagram. You have to find out the length of air column in following orientation of tube at constant temperature. Yes, बच्चे क्वेश्चन का आइडिया है? क्या है क्वेश्चन इसमें? Yes, sir. मैं ए पार्ट में हेल्प करता हूँ. क्या हो सकता है ए पार्ट? सपोज अगर यहाँ ये जो प्रेशर है वो P1 है, from this direction we have, let's say, atmospheric pressure. Weight of mercury always acting downward. So can you suggest me P1 pressure is higher or atmosphere का pressure will be higher? P1. P1. So here P1 should be equal to, let's say, atmospheric pressure plus pressure due to, let's say, mercury column. P1 should be atmospheric pressure plus pressure exerted due to mercury column. From here P1 should be equal to 76 सेंटीमीटर. अच्छा, मरकरी का अभी तक मैंने हाइट नहीं दिया है क्वेश्चन में. सपोज ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये मरकरी 10 सेंटीमीटर है ना. सपोज ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो मरकरी का हाइट है या लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है. सो कैन वी से यहाँ हम लोग 10 सेंटीमीटर और ऐड कर लें, सो दिस मच सेंटीमीटर ऑफ mercury will be the total pressure now for gas.
यार बच्चे ये प्रेशर समझ में आ रहा, P1 का वैल्यू कितना है? सो P1 शुड बी नथिंग बट 86 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. P1 is nothing but let's say equal to 86 centimeter of mercury. Now can we apply now, let's say P naught V naught should be nothing but let's say P1 and V1, assuming let's say यहां जो प्रेशर है वो P naught था स्टार्टिंग में. ये बता सकते हो क्या प्रेशर P naught का वैल्यू कितना होगा? प्रेशर P naught सर पी नॉट कौन सा? P नोट जब वो हॉरिजेंटल रखा था ट्यूब है ना, P नोट वो प्रेशर है एयर का जब वो हॉरिजेंटल था. यस, इट शुड बी इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, सिंस ऑब्वियसली ये जितना इसको मर्क्यूरी को इधर पुश कर सकता है ये एयर भी उतना ही इधर पुश कर सकता है ना. यस. अच्छा, the P naught is nothing but let's say 76. Can we say V naught की जगह मैं simply बस L naught लिख दूं and it is nothing but 86 multiplied by L1. वॉल्यूम की जगह लेंथ लिखने का पर्पस ये है कि दोनों साइड से क्रॉस सेक्शनल एरिया विल कैंसल्ड आउट. फ्रॉम हेयर L1 का वैल्यू 76 into 100 सेंटीमीटर था and divided by 86 है ना. दिस होल डिवाइडेड by 86 कितना आंसर आ जाएगा ये? 7600 डिवाइडेड by 86. तो कुछ 88.4 समथिंग कुछ ऐसा आना चाहिए. यस. So your answer should be approximately 88.4 centimeter. Yes, I'm repeating again. यहाँ कुछ है कि ग्लास ट्यूब है with uniform cross sectional area closed from one end, lies horizontally है, और अभी लेट्स से उसको वर्टिकली अगर हेल्ड कर दिया था दो डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ, तो फर्स्ट वाले केस में ड्यू टू मर्क्यूरी का प्रेशर वो एयर कॉलम थोड़ा कंप्रेस हो गया है एंड द लेंथ इज फाउंड टू बी 88.4 सेंटीमीटर. यस, कैन यू सजेस्ट मी सेकंड वाले केस में क्या आंसर आने वाला है सर? यस, अनुष्का जैन, बड़ा सही है तुम्हारा आंसर सेकंड का. यस, विनीत तुम्हारा आंसर भी सही है. यस, नमन शेट्टी तुम्हारा आंसर भी सही है. So again, let's say suppose here you can assume this pressure is nothing but P2, and from here this pressure is nothing but let's say atmospheric pressure. So in this case, अमन नहीं बेटा, तेरा आंसर थोड़ा गलत है. Weight of mercury will be still acting downward. So P2 का जो वैल्यू है it should be nothing but atmospheric pressure minus pressure due to let's say mercury column. Pressure due to mercury column and P2 should be equal to 76 minus 10 comes out to be 66 centimeter of mercury. This P2 comes out to be 66 centimeter of mercury. Then further you can say still P naught V naught is nothing but let's say P2 V2. P naught is 76, length is correspond to 100.
P2 is 66 correspond to length L2, and this L2 comes out to be 7600 divided by 66 comes out to be 115.15 है ना, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये 115 सेंटीमीटर है ना। इस बच्चे इतना ही आएगा ना, 115.15 समथिंग लाइक दिस। Yes, sir. यस। इस क्वेश्चन में एटलीस्ट इन दो पार्ट्स में किसी बच्चों को कुछ डाउट है? सर आपने वॉल्यूम को लेंथ कैसे सब्स्टिट्यूट किया? जैसे ये समझने की कोशिश करना बस, जैसे सपोज में P1 P0 V0 इक्वल टू P1 V1 था, मुझे बस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा क्या? अच्छा, फिर वॉल्यूम तो अच्छा, हाँ समझ मतलब गया। एरिया तो कैंसिल्ड आउट हो गया, हाँ तो बस सर, हाँ सर, कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ बच गया। हाँ सर। जैसे बड़ा किसी और बच्चे को डाउट है इसमें? No, sir. ए पार्ट लिखा भी है तुम लोगों ने? Yes, sir. Okay. So let's say it's C part. Let's say it's C. C part is, again, let's say this may be this glass tube. अभी ये जो एंगल है, let's say this angle is found to be 30 degree. यहाँ सेम अभी भी ये मर्करी फील्ड है, and you have to find out, let's say, this length L3. You have to find out this length L3 here. यहाँ से जो प्रेशर है, again it is nothing but let's say atmospheric pressure. तो इस वाले केस में कितना लेंथ आएगा भाई, सीधे मुझे आंसर बताओ उसका। केविन नहीं, यस, कुछ 90s में आएगा आंसर। यस, केविन का मुझे आंसर शायद सही है, मतलब 93 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर तुम लोगों को शायद, है ना? सिंस अभी ये जो वेट है मरकरी का ना, मरकरी का ये जो वेट है उसका सिर्फ साइन 30 वाला कंपोनेंट ही एक्चुअल प्रेशर अप्लाई करेगा, है ना? सो यू कैन से सपोज यहां अगर ये प्रेशर P3 था, सपोज अगर यहां ये प्रेशर P3 था, so in the case of P3 this P3 should be equal to, let's say, atmospheric pressure plus pressure exerted due to mercury column, और मैं सीधे सीधे इसी को मल्टीप्लाइड बाय sin 30 लिख सकते हैं। यह समन तुम्हारा आंसर सही है। From here P3 should be equal to 76 plus 10 times of sin 30, it is same as 76 plus 5 हो जाता है effectively, and it is 81 centimeter of mercury. From here let's say it is
P naught and let's say V naught should be nothing but let's say P3 V3. It is 76 multiplied by L naught is same as 100, and this P3 का जो value है it is let's say 81 multiplied by L3, and from L3 comes out to be 93.8 centimeter. यस मुझे क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग ये किसी भी एंगल पे रख सकते थे, हॉरिजेंटली, वर्टिकली, वी कैन ट्राई टू फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ लेंथ. So we'll do more questions based on the Boyle's law. एक बार आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ लेंगे तो उसमें और भी क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस पे. यस मुझे लिखा है ऐसा. Yes, sir. Yes. So apart from Boyle's law, let's say second gaseous law is Charles' law. Charles' law. According to Charles' law, you can say at constant pressure, volume at constant pressure, volume occupied by given amount of gas increases by 1 divided by 273.15 times. At constant pressure, volume occupied by given amount of gas increases by 1 divided by 273.15 times of volume of gas at 0 degrees Celsius on increasing temperature by 1 degree Celsius. यस ऐसा कुछ स्टेटमेंट पढ़ा है तुम लोगों ने चार्ल्स लॉ का? एट कांस्टेंट प्रेशर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से, है ना, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता, और कितने फैक्टर से बढ़ जाता? 1 divided by 273.15 times of volume of gas at 0 degrees Celsius. For example, if volume of gas by कितना है? increases by 1 degree Celsius. नहीं सर, वो 1 divided by 273.15. For example, if volume of gas at 0 degrees Celsius is suppose V naught, then volume at 1 degree Celsius should be equal to V naught plus 1 divided by 273.15 times of V naught. Volume of gas at 0 degrees Celsius is V naught, then volume at 1 degree Celsius equal to V naught plus
1 divided by 273.15 times of V naught। ऐसा ही वॉल्यूम एट 2 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाता, जितना पहले 1 डिग्री सेल्सियस पे था प्लस और कितने फैक्टर से इंक्रीज हो जाता, 273.15 टाइम्स ऑफ वी नॉट से और बढ़ गए। सो हर एक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से 1 डिवाइडेड बाई 273.15 टाइम्स बढ़ जाएगा हर बार। जो चेंज होगा वो पुराने वाले पे होगा कि ओरिजिनल वॉल्यूम पे होगा? जो पहले 1 डिग्री सेल्सियस से पहले वाला वॉल्यूम था उसमें ऐड करेगा ना। सपोज अगर हमने 2 डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट करना होता तो 1 डिग्री सेल्सियस प्लस समथिंग। 3 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता, वॉल्यूम एट 2 डिग्री सेल्सियस प्लस समथिंग, है ना। जैसा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, V नॉट प्लस 2 अपॉन 273.15 इंटू V नॉट। यस, हम लोग तो समराइज करके देखो ऐसा लिख लेते हैं, ये हो जाता V नॉट प्लस 2 डिवाइडेड बाई 273.15 times of V naught, and so on. If we have to find out volume at T degree Celsius, it will be nothing but V naught और ये आ जाता T divided by 273.15 times of V naught. Yes? Yes, sir. अच्छा, इसमें से क्या हम लोग कॉमन ले सकते थे, हम लोग कॉमन ले सकते हैं V नॉट डिवाइडेड बाई 273.15 और यहाँ मेरे पास टर्म बच जाता T प्लस 273.15। जिसमें से ये वाला जो टर्म है, this may be written as capital T। यस बच्चे, इतना लिखा है तुम लोगों ने कि नहीं है? लिखा है सर। यस सर। आई होप एक ग्रीन वाला पार्ट तो लिख ही लिया है एक तुम लोगों ने, मिनट। पक्का पक्का। बेटे ग्रीन वाला पार्ट लिख लिया था कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. Good, very good. Now further you can say according to Charles law you can simply say, can we say यहाँ ये जो volume होता, it may be written as V naught divided by 273.15 times of capital T लिख सकते हैं क्या उसको हम लोग, T plus 273.15 को? Temperature in Kelvin. यस, सो ये जो टेम्परेचर है वो इन टर्म्स ऑफ केल्विन हो जाता। जैसे पूरे साइंस में इंक्लूडिंग क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री, सब जगह कैपिटल टी मींस टेम्परेचर इन केल्विन है ना, एंड स्मॉल टी विल बी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। सो अनदर स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ मे बी रिटन एज at let's say constant pressure, at constant pressure volume of given amount, volume of given amount of gas is let's say directly proportional to absolute temperature। absolute temperature का मीनिंग है टेम्परेचर इन केल्विन। absolute temperature means temperature in Kelvin।
डिग्री सेल्सियस स्केल का मीनिंग होता है वो रिलेटिव टेम्परेचर स्केल है, रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजिशंस ऑफ वाटर, है ना। लेट्स से जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज होता था उसको 0 डिग्री सेल्सियस नाम दे दिया गया, और जिस पे बॉयल होता था उस पे 100 डिग्री सेल्सियस नाम दे दिया गया, और बीच में 100 डिविजन्स बना दिए, है ना। सो डिग्री सेल्सियस स्केल इज रिलेटिव स्केल, Kelvin temperature scale is absolute temperature. And thus you can say at constant pressure volume will be directly proportional to temperature. Yeah, you can say V divided by T equal to constant, or you can say V1 divided by T1 is nothing but V2 divided by T2 and so on. I hope ये during 9th and 10th class also ये सब पढ़ते आते होंगे ना कि मैं अगर गैस को हीट करूंगा तो it will expand. So in heating of gas, confirmly it will expand, and volume is found to be directly proportional to absolute temperature. Yes, बच्चे लिखा है इतना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और ये होता था 9th क्लास में कि नहीं, बॉयल्स लॉ के साथ में? नहीं यस सर। था ये चार्ल्स लॉ? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा ठीक। तो ये सब अभी नाम जो भी हम लोग ले रहे हैं वो सब जाने पहचाने से ही है। Now you see, if you graph based on Charles law, you can say at, let's say, constant pressure, here let's say on this axis it is volume, and on this axis let's say we have temperature, and similarly on this axis let's say this may be temperature in degrees Celsius, and on this axis let's say we have volume. So in first case we all also know this volume is nothing but V naught divided by 273.15 times of capital T है, और दूसरे वाले केस में वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू V naught प्लस V naught divided by 273.15 times of small t. ऐसे ही है दोनों की इक्वेशंस। अच्छा, फर्स्ट वाले केस में ग्राफ कैसा आएगा बेटा? वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। स्ट्रेट लाइन आएगा। Yes, so it should be straight line tending to origin at constant pressure. Now suppose if I just try to draw more graph here, and let's say one more graph here correspond to pressure P1, pressure P2 and pressure P3. Can you suggest me out of pressure P1, P2, P3 कौन सा pressure higher है इसमें? P3. P3. Very good. So this P3 should be more than P2, should be more than P1. Yes, तुम लोग ऐसा समझ भी सकते थे यहाँ से. If you put a vertical line, so सबके लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है ना? P1 का भी टेम्परेचर सेम है, P2 का भी और P3 का भी. For constant temperature, pressure was inversely proportional to volume according to Boyle's law. तो जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता उसका प्रेशर सबसे कम होगा. So वॉल्यूम P1 के कॉरेस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा था. It means it is least pressure,
एंड P3 के कॉरेस्पॉन्डिंग लेट्स से वॉल्यूम सबसे कम था, सो इट हैज मैक्सिमम प्रेशर। यह सोचे क्लियर है वो? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट वाले केस में ग्राफ ओरिजिन से पास होगा कि नहीं होगा? भाई सर ओरिजिन से पास नो सर, ओरिजिन से पास नहीं होगा। वी ऑल्सो नो कि भाई ये मतलब ये जो ग्राफ स्टार्ट होना चाहिए, डू यू थिंक ये V नोट से पास होगा? पक्का है ना? जब T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वाज V नोट, यही था ना, V नोट वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो ऑब्वियसली ये वाला जो ग्राफ है, दिस विल बी दिस टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैन यू सजेस्ट मी ये इंटरसेप्ट कितना है, ये वैल्यू कितना होने वाला है? -4। -4? क्यों भाई ऐसा -4 क्यों बोला तूने? -4 नहीं है वैसे, बस कितना होगा ये? सर वो कुछ तो रिलेटेड था वाटर के उससे। वो तो 4 था बेटा, +4 होता है, हाँ। -4 थोड़ा रहता है। क्या होगा सर? अरे मतलब ऐसा आसान है भाई, इस वॉल्यूम को 0 से इक्वेट कर दे और वो T फाइंड आउट कर लो, है ना? इस इक्वेशन में मैंने वॉल्यूम को 0 पुट कर दिया है ना वहां टेक्निकली। यस, कितना आएगा वो टेम्परेचर? -273.15 डिग्री सेल्सियस, है ना? 0 केल्विन बेटा। तो 0 केल्विन पे ही तो वॉल्यूम 0 होगा किसी भी गैस का। Yes, sir. और यहाँ भी अगर मुझे डिफरेंट लेट्स से प्रेशर के लिए बनाना होता तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन आ सकता था, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन आ सकता था फॉर प्रेशर P1, P2 and P3, and in this case also P3 should be more than P2, should be more than P1. बच्चे इस ग्राफ्स में कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछना तुम लोग। कुछ डाउट है बेटा इसमें? नहीं सर। ओके, should we move further? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट। 1 मिनट सर। हाँ। यस, नीचे लिखा है ऐसा। Yes, sir. Okay. Now, let's say third is Avogadro hypothesis. Third one, Avogadro hypothesis. According to Avogadro hypothesis is at constant pressure and temperature. At constant pressure and temperature, equal volume of all the gases consist
same number of moles at constant pressure and temperature. Equal volume of all the gases consist same number of moles. जैसा you can say 22.4 liter of all the gases at NTP consists 1 mole, है ना? 22.4 liter of all the gases at NTP consists 1 mole. Further, here you can say at, let's say, constant pressure and temperature, can we say volume will be directly proportional to number of moles? यही है ना एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का Yes, मीनिंग? sir. Yes, sir. Yes, so you can say V1 divided by N1 should be nothing but V2 divided by N2 should be equal to constant. एक हम लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा in which वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है. एक चार्ल्स लॉ जिसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है. एक में लेट्स से वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है. You combine all these three relations, all these three experimental laws. समझेंगे तीनों को कंबाइन करने से कुछ आइडियल गैस इक्वेशन बन सकता है. इतना लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let's say fourth one. Yeah, instead of fourth, you can simply say, let's say, according to Boyle's law. According to Boyle's law, volume is inversely proportional to pressure at constant temperature and number of moles. Similarly, according to Charles' law, volume is directly proportional to temperature at constant pressure and number of moles. Similarly, according to Avogadro hypothesis, volume is directly proportional to number of moles at constant pressure and temperature. Now, if you combine all these three relations, Boyle's law, Charles' law, and Avogadro hypothesis, overall you can say volume will be directly proportional to N into T divided by P. तो यहाँ हो सकता था at constant temperature and pressure, volume directly proportional to number of moles. At constant pressure and number of moles, volume directly proportional to temperature. Further, if you rearrange this, you can say P into V divided by N divided by T should be equal to some constant, and let's say इस constant का नाम हम लोग दे देते हैं R, where R is also known as universal gas constant. Or you can simply say P1 V1 divided by N1 T1 is nothing but P2 V2 divided by N2 T2 and so on equal to R.
यस बच्चे, लिखा है ऐसा? एक मिनट। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसी इक्वेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा और रीअरेंज कर लें, तो ये चैप्टर तुम्हें उससे एटॉमिक से आसान लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है? आसान है सर। आसान लग रहा है सर। आसान है, चलो अभी देखते हैं ना। हाँ मतलब एटॉमिक से आसान है, एटॉमिक से कम कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। बट देखेंगे क्वेश्चंस करना हमेशा उतना आसान नहीं रहने वाला। एटॉमिक एटॉमिक इज मतलब टफ तो नहीं बोलूंगा, एटॉमिक वैसा चैप्टर होता है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं एक साथ, है ना। So if you rearrange this equation, you will get PV equal to nRT, and you already know this equation is known as ideal gas equation. अच्छा, क्यों है इस इक्वेशन का नाम आइडियल गैस इक्वेशन? मुझे क्यों नाम होता है इस इक्वेशन का आइडियल गैस इक्वेशन? कुछ आइडिया? सारे कंडीशंस पे सेटिस्फाई करती है। सारे कंडीशंस में सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? फॉर ऑल द गैसेस इट इज एप्लीकेबल, ऐसा? अच्छा, मैं कुछ ऐसा लिखता हूं यहां, नो गैस satisfy, no gas satisfy this equation, no gas satisfy this equation exactly. Exactly means यहां से जो मेरे पास आंसर्स आएंगे प्रेशर एंड वॉल्यूम के, है ना, यहां से जो मेरे पास आंसर आते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम से, और जो मेरे पास एग्जैक्ट प्रेशर एंड वॉल्यूम है उसमें कोई डायरेक्टली मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर्स आते हैं बेसिकली, है ना। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से जो इक्वेशंस हम लोग लगा रहे हैं उससे हम लोग को अप्रोक्सीमेट आंसर्स आते हैं, है ना। और आना भी चाहिए था ना बेटा, बॉयल्स लॉ अप्रोक्सीमेट रिलेशंस ही है ना। उस लास्ट लेक्चर में देख रहे थे हम लोग कि वो बेस्ट फिट ग्राफ था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ सर। So no gas satisfy this equation exactly, and the gas which follow given equation for all range of temperature and pressure. The gas which follow given equation for all range of temperature and pressure is known as ideal gas. तो हाल फिलहाल इन क्लास 11th एंड 12th फिजिक्स में आइदर केमिस्ट्री में अगर नहीं भी दिया होता है तो गैस को हम लोग आइडियल गैस एज्यूम करते हैं और इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ऑल्दो प्रिसाइजली वी नो कि भाई इस इक्वेशन से एग्जैक्ट रिलेशंस नहीं आते हैं ना, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आती, इट हैव सर्टेन डेविएशन। चैप्टर के एंड तक आते आते हम लोग कुछ रियल गैस इक्वेशन भी पढ़ेंगे, है ना, इसी चैप्टर में। Real gas equation can give relatively more precise result in comparison to this ideal gas equation. So usually जब जेई में क्वेश्चंस आता है या नीट में क्वेश्चंस आता है तो जनरली वहां लिखा भी होता है कि लेट्स अज्यूम ऑक्सीजन गैस इज आइडियल गैस देन कैलकुलेट। अब अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है बेटा उसको आइडियल गैस इमेजिन करने के अलावा।
यस लिखा है। यस सर लिखा है। गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये क्वेश्चंस तुम लोग को पहले से पता था, शायद मैम ने मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया था, है ना? सो दिस R is nothing but, let's say you can say PV divided by NT, and this R का value is 0.0821 atmosphere liter per mole per Kelvin। R का जो वैल्यू है इट इज 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, and for approximate calculation you can take it as 1/12 also। कैलकुलेशन आसान करने के लिए काफी जगह उसको तुम लोग 1/12 भी ले सकते हो। R in another unit it is 0.0821 if atmosphere is converted into Pascal, so it is 10 raised to the power 5 Pascal, and let's say जो लीटर है उसको मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दूं, so it is divided by 1000, so it is, let's say this much Newton per meter square into meter cube per mole per Kelvin, and this R का जो वैल्यू है it comes out to be 8.314। Do you think ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर वो क्यूब, न्यूटन मीटर हो जाएगा ना? वो न्यूटन मीटर बन जाएगा। न्यूटन मीटर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? जूल। जूल्स। सो ये हो जाता 8.314 जूल्स एंड पर मोल पर केल्विन, सो इट इज अनदर वैल्यू ऑफ R इन डिफरेंट यूनिट्स। और ये जो 8.314 है it is approximately equal to 25/3। Further, it is 8.314 divided by 4.18। अगर मैं जूल्स को कन्वर्ट कर दूं कैलोरीज में, so कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, and this R should be precisely equal to 1.97 calorie per mole per Kelvin, so it is another value of R in different units. Here 1.97 you can take it is approximately as 2। R के और भी वैल्यूज हो सकते हैं और डिफरेंट यूनिट्स में, है ना? मतलब मैं जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर ले, आर्क्स में कन्वर्ट कर ले, है ना? इन तीनों में से हम लोग मोस्ट कॉमन यूनिट कौन सा यूज करने वाले होंगे यहाँ? मोर ऑफ लेस जूल्स। जो मतलब एटमॉस्फेयर वाला करेंगे शायद, है ना? ऑब्वियसली जूल्स में इट इज SI यूनिट, बट एज पर दिस चैप्टर इज कंसर्न मैक्सिमम प्रेशर हम लोग को एटमॉस्फेयर में दिया होगा, वो सब समझेंगे ऐसा। मुझे NTP और STP में क्या डिफरेंस है? सर एनटीपी में 22.4 लीटर रहता है गैस का वॉल्यूम, और एसटीपी में 22.7 होता है। एक और टर्म होता है SATP, वो क्या होता है? से यहाँ 3 टर्म हैं मिलते जुलते, मैं समझाता हूँ क्या है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर। हाँ, उसमें टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री नहीं बेटा, उसमें टेम्परेचर 25 डिग्री, यस 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर 1 बार है।
इस बड़े ये लिख लिया सामने R के डिफरेंट यूनिट्स. Yes, sir. Okay. Now here कुछ ये टर्म भी लिख ही लो यार. NTP. NTP means it is 0 degrees Celsius, 1 atmospheric pressure, and molar volume is 22.4 liter. ये STP 0 degrees Celsius and pressure is 1 bar. Here molar volume is 22.7. Let's say one more term is here. It is SATP, है ना? SATP means it is 25 degrees Celsius and 1 bar. यहाँ मोलर वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? किसी बच्चे ने कैलकुलेट किया है? तो कैलकुलेट कर भी लेंगे हम लोग. Volume should be nothing but nRT divided by P, and N is 1, R का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर is 298 Kelvin, pressure is 1 bar means 1 divided by 1.01 atmosphere. So this much liter should be your answer. यस बच्चे, ये प्रिसाइज कैलकुलेशन करो. कोई बच्चे के पास अगर कैलकुलेटर है तो वहां से भी कर सकता है. 1.01 मल्टीप्लाइड बाई 0.0821 लीटर. कितना आएगा ये? 24.07. 24. कितना बेटा फिर से बताओ. Sir, 24.71. 24.71 ना? Yes, sir. So it is 24.71 हाँ liter. सर 24.7. So 24.71 लीटर है ना? ठीक. तो ऐसे 3 टर्म तुम लोग याद रख सकते हो. NTP, STP एंड SATP. So it comes out to be 24.71 liter. नॉर्मली तुम लोग को PV इक्वल टू nRT यूज करना आता है नहीं? मतलब उसमें प्रेशर की जगह ऑब्वियसली P की जगह प्रेशर पुट करना है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, T टेम्परेचर है. और ये लिखा है तुम लोगों ने कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now in this case, let's say it is next thing is density of gas. सर एक सेकंड के लिए पहले का दिखाओ ना. ये बच्ची मरवाएगी किस दिन मुझे. यस हाँ सर हो गया, थैंक यू. ठीक है. So next is you can say it is density of ideal gas. Suppose let's say this may be any closed container.
This may be any closed container having total volume of V. यहाँ जो number of moles हैं, यहाँ जो number of moles हैं, it is nothing but suppose mass divided by molar mass. ऐसा बोल सकते थे हम लोग. Here T is temperature and suppose P is pressure. So we already know number of moles is nothing but PV divided by RT. Instead of number of moles, it is mass divided by molar mass is nothing but PV by RT, and W divided by V is nothing but, let's say, PM by RT. W divided by V is nothing but density. So here density is nothing but PM by RT. So in general, you can say density of gas is directly proportional to molar mass. Density of gas is directly proportional to molar mass. यार किसका डेंसिटी ज्यादा होता है, ड्राई एयर का कि मॉइस्ट एयर का? Moist air. Moist. लोग गंदे बच्चे हो. So density of dry air will be more than that of density of moist air. Like clouds are nothing but moist air and they float over dry air. अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता तो कभी रेन्स होता ही नहीं है ना. ये कुछ ऐसा आसानी से समझ भी सकते हो ना कि जो ड्राई एयर है, ड्राई एयर में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. इसमें N2 है, इसमें O2 है, इसमें CO2 है, इसमें आर्गन है ना. यस, ड्राई एयर में. सो ड्राई एयर का जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास है वो अराउंड 28.9 के आसपास होता है ना, 28.946 ऐसा करके इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास. नाउ इफ यू सी मॉइस्ट एयर, डू यू थिंक मॉइस्ट एयर में मेरे पास ऑब्वियसली N2 है, O2 है, CO2 है, आर्गन है और H2O भी है ना. Yes, sir. In this case H2O का molecular mass है 18. So do you think अब मेरे पास गैस का जो एवरेज molecular mass होगा it will be less than 28.9? You can simply imagine कि भाई चार बहुत भारी भारी दोस्त थे और एक हल्का सा दोस्त अभी साथ में आ गया है, तो एवरेज वेट ऑफ फ्रेंड्स डिक्रीज हो जाता. सर कैसे H2O ऐड हुआ ना. H2O अगर ऐड होगा तो उस वॉल्यूम में से उसने किसी N2, O2 या CO2 को डिस्प्लेस भी तो कर दिया होगा. यस सर. तो अगर मैं 1 मोल के हिसाब से देखूं, अब 1 मोल में पहले सिर्फ चारों हैवियर पार्टिकल ही थे. अब 1 मोल में अपार्ट फ्रॉम हैवियर पार्टिकल कुछ लाइटर पार्टिकल भी आ गए ना भाई. नहीं? यस सर, गॉट इट. Yes, sir, समझो. बड़ा मॉइस्ट एयर का डेंसिटी कम है ड्राई एयर की डेंसिटी से, एज एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस देन दैट ऑफ ड्राई एयर. सेम वॉल्यूम में H2O नहीं आएगा है ना. कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने के लिए तो मुझे, अगर मैं H2O डाल रहा हूं तो फिर मुझे वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा है ना, या किसी और गैस के पार्टिकल को वहां से हटाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ H2O, जिसकी वजह से एवरेज मॉलिक्यूलर मास विल डिक्रीज.
यस बच्चे क्लियर है ये? Yes, sir. हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें से लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डेंसिटी of oxygen gas at, let's say you can say 27 degrees Celsius and 1 atmosphere. You have to find out density of oxygen gas at 27 degrees Celsius and 1 atmosphere. ऐसा आसान सा क्वेश्चन है, एकदम जल्दी से फोड़ दो इस क्वेश्चन को तुम लोग। अच्छा, ऑब्वियसली मतलब तुम लोगों को यूनिट्स, जो डेंसिटी का यूनिट है वो भी बताना चाहिए, कौन सी यूनिट्स में आएगा। केविन, जो तेरी डेंसिटी है वो वाटर के डेंसिटी से भी ज्यादा हो जा रहा है बच्चे। ऑक्सीजन इज मच लाइटर इन कंपेरिजन टू वाटर। यस प्रीतम, यूनिट क्या है इसका? स्वरूप ने यूनिट से सही बताया बट उसका आंसर गलत है। अच्छा, मेरे पास डेंसिटी का ऑब्वियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि ये पीएम डिवाइडेड बाई आरटी है ना। डेंसिटी इज नथिंग बट लेट्स से पीएम बाई आरटी है। सो डेंसिटी, यहाँ जो मेरे पास प्रेशर है लेट्स से वो 1 एटमॉस्फेयर है। मेरे पास जो मॉलिक्यूलर मास है इट इज 32 ग्राम पर मोल है ना, O2 का मॉलिक्यूलर मास। R का वैल्यू इज 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन है, एंड टेम्परेचर इज लेट्स से अराउंड 300 केल्विन। Now, since everything, if you see units wise, यहाँ मेरे पास बस ग्राम बच गया और यहाँ मेरे पास बस लीटर बच गया है ना। मतलब बाकी सारी यूनिट्स तो कैंसिल्ड आउट हो गए, देखो है ना। इफ यू सी एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर कैंसिल्ड आउट हो गया, लेट्स से पर मोल एंड पर मोल कैंसिल्ड आउट हो गया, पर केल्विन एंड केल्विन कैंसिल्ड आउट हो गया। तो मेरे पास बस ग्राम्स एंड लीटर वाला यूनिट ही बचा। So from here density कितना आ रहा है बेटा? 1 point कितना है? 1.33 1.28. 1.28। So around 1.28 and gram per liter आएगा है ना। 1.28 1.29 जो भी आएगा बड़े ग्राम्स पर लीटर में है ना, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं आएगा। So it is grams per liter। यस बच्चे, क्लियर है ये? Yes, sir. ओके सर मुझे 1.29 आ रहा है। हाँ ठीक है बेटा, 1.29 या 1.28 है ना। तो इसको मैं 29 कर देता हूँ, तुम्हारी इच्छा है तो 1.29 ग्राम्स पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, if
air in open vessel is heated. If air in open vessel is heated from, you can say, let's say 27 degrees Celsius to 327 degrees Celsius, then find out the fraction of air molecule escaped from vessel. मैं क्वेश्चन का मीनिंग समझा देता हूं क्या है यार। मेरे पास एक ऐसा ओपन वेसल, ओपन कंटेनर है, ओपन टू एटमॉस्फेयर, यहाँ कुछ कुछ गैस फील्ड है, ऐसे सब मिला के यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के वो N1 है। If you start heating these molecules, obviously कुछ मॉलिक्यूल एस्केप करके बाहर चले जाते और कुछ वापस यहीं बच जाएंगे। लेट्स से सपोज जो बच जाएगा वो N2 है और जो बाहर चला जाएगा वो N1 माइनस N2 है। So you have to find out N1 minus N2 divided by N1. यही है ना क्वेश्चन का मीनिंग? Yes, sir. So you have to find out, let's say, how much fraction of air molecule escaped to open atmosphere. सर ओपन वेसल इज आगे क्या लिखा है? Open vessel is heated. एक ओपन वेसल है जिसको हम लोग ने हीट किया है, लेट्स से। द फ्रैक्शन ऑब्वियसली 1 से कम आएगा मेरे पास आंसर। फ्रैक्शन का वैल्यू तो 1 से कम आना चाहिए। एक तो मुझे ये पता है फॉर ओपन वेसल कैन बी से P1 should be equal to P2 should be equal to 1 atmosphere. जितना भी एयर इसमें प्रेजेंट होगा वो 1 एटमॉस्फेयर ही होगा ना। जितना भी एयर प्रेजेंट होगा यहाँ, है ना, इट इज 1 एटमॉस्फेयर। नाउ डू यू थिंक V1 should be equal to V2 is same as, let's say, वॉल्यूम ऑफ वेसल? ये जितना भी एयर यहां प्रेजेंट है इट इज इक्वल टू, लेट्स से, वॉल्यूम ऑफ द वेसल, एंड thus you can simply say P1 V1 divided by N1 T1, in which it is P2 V2 divided by N2 T2. From here N1 T1 should be equal to N2 T2 आ जाता। Here N1 T1 should be equal to, let's say, N2 T2 आ जाएगा। N1 as per temperature T1 is concerned, it is 300 and it is N2, and do you think ये आ जाता 600?
from here N2 is N1 divided by 2. So आधे गैस के मोल्स बच जाएंगे और आधे एस्केप हो जाएंगे टेक्निकली. तो डू यू थिंक ये वाला जो फ्रैक्शन है मेरे पास ऐसा हाफ बच जाता? ये जो फ्रैक्शन है लेट्स से वो टेक्निकली ऐसा हाफ बच जाता और हाफ एस्केप हो जाता. Yes, sir. ऐसे बच्चे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन लिखा है ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके. थर्ड क्वेश्चन इज सर इस क्वेश्चन में V1 करके भी निकाल सकते हैं ना? V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 करके V1 और V2 का निकाल सकते हैं रिलेशनशिप. बेटा V1 एंड V2 देखो वो वाला V2 तो हम लोग फाइंड आउट कर ही नहीं सकते है ना कि जो एयर एस्केप हो गया है उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेगा फिर? बेटा जो एयर एस्केप हो गया है उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेगा? और V1 अपॉन T1 अप्लाई करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहने चाहिए बेटा गैस के. यहाँ तो मोल्स पक्का एस्केप कर गए हैं ना. अच्छा. Charles law is applicable only if number of moles remain constant. Right? Yes, sir. Okay. Let's say next question is let's say at constant temperature है ना, at constant temperature let's say यहाँ एक वाल्व है जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर. यहाँ एक वेसल है लेट्स से जिसका वॉल्यूम है सपोज 3 लीटर और यहाँ एक वेसल है लेट्स से जिसका वॉल्यूम है सपोज 2 लीटर. यहाँ भी गैस फिल्ड है, यहाँ भी गैस फिल्ड है और गैस यहाँ भी फिल्ड है. Here this P1 is given as 2 atmosphere. Here this P2 is let's say 1 atmosphere and here let's say this P3 is nothing but 3 atmosphere. और इन सब के बीच में ऐसा कुछ वाल्व कनेक्टेड है. इन सब के बीच में ऐसा कुछ वाल्व कनेक्टेड है. सो फाइंड आउट फाइनल प्रेशर आफ्टर ओपनिंग ऑफ बोथ वाल्व्स. दोनों वाल्व्स को अगर हम लोग ओपन कर देंगे तो फाइनल कॉमन प्रेशर कितना होगा वो फाइंड आउट करना है हम लोग. Assuming temperature will remain constant. Yes. तो किसी बच्चे को आंसर आ रहा था कुछ? See, your answer has to be in the unit of atmosphere. यस केविन तुम्हारा आंसर सही है. उदय तुम्हारा आंसर भी सही है. रमेल नहीं बेटा तुम्हारा आंसर सही नहीं है.
तो तीनों कंटेनर में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और टोटल मोल्स भी फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, है ना। जैसा यू कैन सिंपली से टोटल moles of gas should be equal to summation of P1 V1 divided by RT plus it is P2 V2 by RT plus it is P3 V3 by RT। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स PV by RT था, और ऐसा ही टोटल वॉल्यूम is nothing but V1 plus V2 plus V3. So finally common pressure should be equal to, common pressure should be equal to, let's say, total moles into RT divided by total volume, divided by total volume, and should be equal to, can we say, ये आ जाता P1 V1 plus P2 V2 plus P3 V3 divided by V1 plus V2 plus V3। यस, तो ये आंसर मेरे पास 11/6 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। 11/6 एटमॉस्फेयर, ऐसा बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये आंसर बताया भी था, है ना, कि आंसर 11/6 एटमॉस्फेयर है। यस बच्चे, लिखा है इसको? यस सर, लिखा है। यस सर। ओके, तो जब भी हम लोग मिक्सिंग करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर देंगे, है ना। whenever we do mixing of gases, total number of moles should remain constant. Let's say next question is, यस कृपा, मैं फोन से बात करता हूँ उससे, है ना। So next, let's say question number 4. Question number 4 is, two identical vessels having gas and let's say connected, दोनों कनेक्टेड भी हैं एक दूसरे से। सो जो वेसल हैं वो कुछ इस टाइप के हैं। लेट्स से एक वेसल ये है और अभी एक वेसल लेट्स से ये है, दोनों आइडेंटिकल वेसल हैं एंड सपोज दोनों में ही एयर या गैस यहाँ प्रेजेंट है, दोनों में यहाँ एयर या गैस यहाँ प्रेजेंट है। सो टू आइडेंटिकल वेसल हैविंग गैस एंड कनेक्टेड। स्टार्टिंग में यहाँ प्रेशर लेट्स से P1 है एंड ऑब्वियसली लेट्स से दोनों वेसल्स का जो टेम्परेचर है वो T1 है। स्टार्टिंग में प्रेशर P1 है, दोनों ही वेसल में कनेक्टेड प्रेशर तो हमेशा सेम रहेगा और दोनों वेसल का लेट्स से टेम्परेचर भी T1 है। नाउ इफ सपोज मैं इंस्टेड ऑफ लिखना मैं डायग्राम ही ड्रॉ कर देता हूं। अब सपोज अगर ऐसा कर दिया गया है कि ये एक वेसल है ना,
and connected with, let's say, another identical vessel. Suppose अभी कुछ ऐसा कर दिया गया है according to question. It is dipped in a bath in which temperature is T1, and it is dipped in a bath in which, let's say, temperature is T2. तो can we say अभी जो first वाला flask है it will be maintained at a temperature of T1. जो second वाला flask है it is maintained at a temperature of T2. Yes, बच्चे, getting the point? Yes, sir. So you have to find out final common pressure. You have to find out final common pressure. Obviously, you have to find out your answer in terms of P1, T1, T2. तो यहाँ देख भी लो तुम लोग क्वेश्चंस कैसे करोगे. लेट्स से if volume of, let's say, vessel, ना किसी भी एक वेसल का वॉल्यूम सपोज V है, सो टोटल नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स, टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, डू यू थिंक ये हो जाता P1V divided by RT1 plus it is P1V divided by RT1. दोनों वेसल्स के नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने ऐड कर दिए हैं. दोनों वेसल के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हम लोगों ने ऐड कर दिया है. टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स. सिमिलरली, let's say final number of gaseous moles should be equal to, can we say the final pressure P2 है, वॉल्यूम V, एक वेसल का टेम्परेचर अभी T1 पे ही मेंटेन्ड है और दूसरे वाले कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो T2 पे मेंटेन्ड है. ये दोनों इक्वेशन समझ में आ रहा कैसे लिखा है? Yes, sir. Okay. Now initial number of moles should be equal to final number of moles. So it is 2P1V divided by RT1 should be equal to, let's say it is P2V divided by R, and it is T1 plus T2 divided by T1, T2. So do you think यहाँ से P2 का वैल्यू आ सकता है आसानी से? So from here your answer P2 should be equal to, it is 2P1 T2 divided by, do you think T1 plus T2? Yes? अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? Yes, sir. Okay. सर P1 और Yes, बोलो बेटा.
सर प्रेशर तो सेम ही रहेगा ना? यस बेटा, प्रेशर दोनों ही फ्लास्क में सेम रहेगा, तो दोनों के लिए फाइनली मैंने P2 लिया है, और ऐसा भी स्टार्टिंग में दोनों ही फ्लास्क के लिए मैंने P1 लिया था। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ सर वो बीकर में डालने के बाद भी चेंज कैसे होगा? तो बीकर में डालने से अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा गैस का, अगर उस फ्लास्क में, उस फ्लास्क को उन हॉट बाथ में डालने से अगर गैस का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो प्रेशर क्यों नहीं चेंज होगा भाई? अच्छा, हाँ सर, हाँ सर। यस बच्चे, लिखा है ऐसा? Yes, sir. Okay, next question. Yes, Vinith, in second, both are having different temperature but same pressure. Yes, Vinith, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है बट प्रेशर हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि बीच में कनेक्टिंग है दोनों, है ना? अगर दोनों कनेक्टिंग है तो प्रेशर हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। Okay, sir. यस बच्चे, लिखा है इसको? Yes, sir. ओके, मेरे लिए तुम लोग एक और आसान क्वेश्चन अभी करके दिखाना। मैं एक क्वेश्चन तुम लोग का शेयर कर रहा हूँ। दिस इज द क्वेश्चन, है ना? ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट an ideal gas obey an additional equation of state P square V equal to constant. The initial temperature and pressure दिया है, let's say T and V है, then it expand to a volume of 2V, its temperature will be, हम लोग के पास 4 ऑप्शंस भी गिवन है। ये PV इक्वल टू NRT तो है ही, है ना? साथ में लेट्स से P स्क्वायर V इक्वल टू कांस्टेंट भी है किसी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, या यू कैन इमेजिन किसी पाथ में ऐसा। उस गिवन पाथ के लिए स्टार्टिंग के टेम्परेचर एंड वॉल्यूम गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट फाइनल, लेट्स से वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम गिवन है, फाइनल टेम्परेचर तुम लोग को फाइंड आउट करना है। यस प्रथनव, शायद तुम्हारा सही था आंसर। तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आई कैन से एज इट इज गिवन एज P square V equal to, let's say, constant, so you can say it is P1 square times of V1 should be nothing but P2 square times of V2, है ना? P1 square times of V1 should be equal to P2 square times of V2। अच्छा, मुझे अब चाहिए टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में रिलेशन, सो इंस्टेड ऑफ P1 कैन वी से इट इज NRT1 डिवाइडेड बाय V1 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ V1, एंड शुड बी नथिंग बट NRT2 डिवाइडेड बाय V2 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ V2 आ जाएगा। प्रेशर की जगह मैंने NRT अपॉन वॉल्यूम पुट कर दिया, है ना?
यहाँ से n एंड r तो कांस्टेंट है, तो n एंड r तो कैंसिल्ड आउट हो गया, एंड दिस रिलेशन रिमेनिंग विल बी t1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 should be equal to t2 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय लेट्स से v2। कुछ ऐसा रिलेशन बच जाता है मेरे पास, है ना। क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है कि अगर v1 का वैल्यू v है, सो v2 का वैल्यू 2v है, तो ये दोनों वैल्यूज हम लोग चाहते हैं यहाँ पुट कर सकते थे ऐसा करके। सो इट इज t1 जो t था लेट्स से, सो t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू t2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v। From here t2 comes out to be root 2 times of t1, and thus your B option should be answer. Yes, बच्चे, getting this example? Yes. Yes, sir. और लिखा है तुम लोगों ने ये कि नहीं? Yes, sir. एक मिनट क्वेश्चन लिखना है। 1 मिनट सर। डन सर। Done? एक सेकंड सर। हाँ सर, हो गया। Okay. So till now हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन में समझा और उसके बेस पे कुछ आसान क्वेश्चंस कर लिए, है ना। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, बट रिलेटिवली टफ क्वेश्चंस। तुम लोग का आइडियल गैस का जो मॉड्यूल है, प्रिंटेड मॉड्यूल, 2 से 3 दिन में तुम लोग को पहुंच जाएगा, है ना। फिर भी मैं आज आइडियल गैस का जो सॉफ्ट कॉपी है PDF वो शेयर कर दूंगा, और वहां से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे तुम लोगों को एज ए होमवर्क, है ना। ठीक है। Okay, sir. ओके सर। फिर मैं कुछ असाइनमेंट 1 2 3 इसका क्वेश्चन बैंक वो सब भी शेयर कर दूंगा, है ना। वो भी करना है, बट पहले बुकलेट खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब तुम लोग बुकलेट से अराउंड 40-45 क्वेश्चंस कर सकते हो, तो उतना काफी है मुझे लगता है ना। हाँ सर। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करेंगे यार। देखो, ये बच्चा मुझे कुछ पूछ रहा है, इफ 1 millimeter of mercury in a tube applies 1 milliliter of Hg pressure downward, then what will happen if tube is filled with mercury up to 1 mm and is then filled with mercury fall down
or the atmospheric pressure hold the mercury. Yes, Vatsal, उस मरकरी को नीचे वाला एटमॉस्फेयर होल्ड करके रख सकता है ना, unless until mercury as a solid या as a liquid types of flow ना बन जाए, है ना. सपोज अगर बहुत थिन ड्रॉपलेट है तो वो सस्पेंडेड का सस्पेंडेड ही रह सकता है ना. सपोज मेरे पास काफी थिन ट्यूब है तो वो सस्पेंडेड रह सकता है ना. यस वत्सल, तो वो फ्लिप करेगा तो नीचे नहीं गिरेगा फिर मरकरी. If it is a very thin capillary type of tube. yes, बेटा किसी और बच्चे कुछ डाउट पूछना है?